Good morning, students. Hope you all are doing well. In today's class, I'm going to solve some questions from ICAT's question paper, grade 9 to 11. That's O levels, 2018 April. So we have already done some of the questions in the previous class. So in today's class, I'm going to do some other questions today so that we know how to read and interpret the questions given to us in the ICATS paper. So what we have already learned a lot about basically syllabus and everything is being completed, but we need to apply the knowledge we have learned. So let's begin. The first question here is, you can see that study this growing pattern. You need to look and you have to focus on what this pattern is showing us. So let's zoom in here. The pattern is, study this growing pattern. First, observe this picture. There is a white box, and around that white box, we're having a blue box. Around that blue box, we're having a white box, and around that white box, we're having the blue box. Now, if you want to grow this pattern further, अगर आपको इसको मज़ीद increase करना है, what will be the next diagram? So let's look here. So you have to work a bit smartly over here. You need to see where you are right, where you're wrong. You have to save your time. अगर हम यहाँ देखें सेंटर में ब्लू बॉक्स है लेकिन यहाँ पे वाइट बॉक्स है so this will no way be the answer. Coming to the second part, you can see that there is a white, then the blue box, then white, then the blue box. You can see that there is a blue box. First of all के बीच में blue आ रहा है, which is not correct. तो एक चीज इसमें ये गलत हो गई और दूसरा दो white boxes आ रहे हैं, it is also not correct. So this will also may not be the our correct answer. Coming towards the part C option, we can see that there is a white box which matches to our understanding. White box के बाहर blue box है, that's correct. It is totally matching. फिर blue box के बाहर white box है, and then white box के बाहर blue, blue के बाहर white. This is mostly the correct answer we are finding. Let's check the last one to confirm our answer. Again, center में white box तो है, लेकिन white box के बाहर blue box होना चाहिए. लेकिन if you look at it carefully, white box के बाहर white box है. So this won't be the answer as well. So this is the way we're going to work out the sequences coming together. Now, coming towards this, question number 9. The wheels on the Bill's bicycle each have a radius of 35 centimeter. कहने की एक बाइसाइकिल है बिल की और उसकी जो व्हील्स हैं, हमें पता है कि व्हील्स सर्कल शेप में होते हैं. कहने कि उसका जो रेडियस है इट इज 35 centimeter. Which of the following is the closest distance the bicycle moves along the ground to complete one complete revolution of the wheels? अब इस बात का मतलब क्या है? You need to break down the sentences. If you are feeling difficult to understand the question, break it down to pieces. First part, the wheels on the Bill's bicycles each have a radius of 35 centimeters. Now translate to yourself कि जितने भी wheels हैं बिल की bicycle पे उसका जो radius है वो 35 सेंटीमीटर है. Now second part, which of the following, नीचे दिए हुए कौन सी is closest distance, सबसे करीब distance है the bicycle moves along the ground, कि जो कि bicycle ने move किया है, जितना distance उस bicycle ने cover किया है ground पे in one complete revolution of the wheel. एक जब पूरा व्हील एक फुल सर्कल कंप्लीट करता है यानी फुल टर्न उसने ले ली ग्राउंड पे, तो कह रहे कि उस बाइसाइकिल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. मुझे पता है कि अगर मैं बात करूँ इस सर्कल की, इफ आई एम ड्राइंग अ सर्कल हियर, और अगर मैं इसकी पॉइंट्स मार्क करें कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है? द कंप्लीट रेवोल्यूशन इज बेसिकली starting from here, going from here and coming back to this point. This will be the complete revolution. तो हमें पूछ रहे कि जब इस पूरे व्हील ने एक पूरा टर्न कंप्लीट कर लिया होगा तो वो उसने ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस कवर किया है. अगर मैं आपसे कहूँ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक व्हील घूम रहा है तो उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा ना जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया होगा ना. What do I mean by this? Again, अगर हम देखें, मुझे पता है कि व्हील यहाँ से स्टार्ट होगा, अब ये टर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, टर्न करेगा टर्न करेगा टर्न करेगा टर्न करने के बाद यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा. ये मैं बात अब क्लियर हो चुकी है.
लेकिन क्वेश्चन ये कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो मुझे पता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस एक व्हील का है उतना ही तो वो कवर करेगा। क्यों भाई? मुझे पता है कि जब मेरी व्हील मूव करना स्टार्ट करेगी तो इस व्हील का भी कुछ बाहर का डिस्टेंस है ना, जितना उस व्हील के बाहर का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस वो रोड पर भी कवर होगा। अगर आपको याद हो, हम लोग सर्कमफ्रेंस पढ़ रहे थे। सर्कमफ्रेंस हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कैसे किया था, हमें कैसे समझाया गया था कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी मिसाल ये है कि आप एक धागा लें, टेक अ थ्रेड, ठीक है, उस धागे को सर्कल के एक पॉइंट पे स्टिक कर दें। जैसे मैंने अगर लेट्स सपोज इफ आई एम ड्राइंग अ सर्कल राइट हियर, मैंने इसका एक पॉइंट बना दिया दैट इज ओवर हियर। मैंने एक थ्रेड लिया ब्लैक कलर का और मैंने धागा यहाँ पे इसके आसपास लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस धागे को निकालूं इट विल बी अ लॉन्ग स्ट्रिंग। जितना धागा इस सर्कल के बाहर पूरा आएगा हम कहते हैं कि वो सर्कल के बाहर का डिस्टेंस है, यानी इट्स एन आउटर डिस्टेंस ऑफ द सर्कल। तो ऑब्वियसली बात है कि जितना उस व्हील का डिस्टेंस होगा, जितना उस व्हील का सर्कमफ्रेंस होगा, क्योंकि सर्कल शेप है तो जो व्हील का आउटर डिस्टेंस हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जितना उस व्हील का सर्कमफ्रेंस होगा उतना ही डिस्टेंस उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। सो हाउ कैन आई फाइंड इट आउट? इट्स वेरी वेरी इजी। हमें पता है कि दैट व्हील इज इन सर्कल शेप एंड सो द सर्कमफ्रेंस is equals to 2 pi r. So 2 multiplied by 35, sorry, 2 multiplied by pi multiplied by 35 centimeters. And so I will get the answer 29. I'm getting the answer, I'm writing it down here. 219.91. And if I write it down off to three significant figures, my answer will turn out to be 220. So our correct answer is D. So you can see that it's nothing so hard to apply. It is just about to think it smartly, to read the questions properly and understanding the concept. अगर हम देखें तो ये बहुत ही easy concept था, circumference concept था, लेकिन we just had to focus here in a better manner. Now coming here towards the next question, two families buy refreshment. Okay, I'm going to show this question on a piece of paper, but let's before understand it, we will just make the equations first, और फिर हम इन equations को solve करेंगे. Two families buy refreshments at a concession stand. Each drink cost D dollars and each snack cost S dollars. अब हम इन दो जुमलों को इस्तेमाल करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं. Let's make some statements out here. एक ड्रिंक है जिसकी कॉस्ट D है. एक ड्रिंक का कॉस्ट कितना है? D. One drink is for D. अगर मैं आपसे कहूँ कि दो ड्रिंक्स कितने की होंगी, you will say 2D. What about 3 drinks? You will say me 3D. Just know how we are going to make it in further lessons. Now, snacks के लिए भी same scenario है. One snack is for, basically, one is for S. Two snacks is for 2S. Three snacks are for 3S. So I hope you are clear with this. How are we going to make the terms down? Now, the Blake family, now there are two families down here. The Blake family buys 3 drinks. तो 3 drinks हम लिखते हैं Blake family के बारे में. We are writing it down about Blake's family. So Blake's family, उसने क्या क्या खरीदा? Blake's family has bought. So if you see here, Blake's has bought 3 drinks. अभी हमने डिसाइड किया था कि एक ड्रिंक की प्राइस कितनी है? D. 2 की प्राइस कितनी है? 2D. So for 3 drinks, it is going to be 3D. So Blake's family has bought 3 drinks and 2 snacks. So similarly, 2 snacks. And the total amount he has paid is $12.
So $12 is the total amount he has paid. So कैसे होगा, अगर हम ड्रिंक्स की अमाउंट को प्लस करते हैं स्नैक्स की अमाउंट के साथ, हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी, इट विल बी $12. Similarly, for the other part, now we are having Reese family. What has Reese family done? Reese family buys 2 drinks, so let me write the heading Reese family. He has bought 2 drinks, so 2D. Then plus how many snacks has he bought? 4 snacks. So 4s. And what is the amount he's paying? He's paying $16. Now the question is, what is the cost of one drink at the concession stand? हमें कह रहे हैं कि एक ड्रिंक की प्राइस को फाइंड करें. हमें पता है कि यहाँ पे डी क्या है, डी यहाँ पे प्राइस है ड्रिंक की, तो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड करनी. इफ यू लुक एट इट केयरफुली, ये दोनों इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस हैं? ये बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं. These are simultaneous linear equations. What are simultaneous linear equations? These are those equations which has two variables, जिसमें दो variables एक साथ होते हैं. You can see we have two variables d and s. If you remember, हम लोगों ने simultaneous linear equation को solve करने के मुख्तलिफ तरीके देखे थे. One way is plotting, but we won't be having so much time to plot the graph in our ICATS paper. And second way is elimination or substitution method. The method I like the most and the easiest method is basically the elimination method. So how will we eliminate? First of all, I'm going to show this all to you on a piece of paper so that's clear to you further. We will be writing the two equations together, up and down. Now you can see that we have written the equations up and down. If you remember, elimination में मतलब क्या है? Elimination is that we need to remove any one variable remove करना जो हमें नहीं चाहिए होता है. We need the drink one, so we will have to remove the snacks. अब snacks को remove करने के लिए हमें किसी भी एक value को same बनाना होगा. So if I look over here, it's 2 and down it's 4. Can I make 4 2? Can I make 2 4? Yes, I can make 2 4. How? By multiplying 2 here and 2 here. So 2 3s are is 6 d plus 2 2s are is 4s is equals to $24. Similarly, 2d plus 4s is equals to $16. Now, मुझे 4s को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है. यहाँ पे 4s प्लस प्लस हो रहा है, उसे क्या करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, माइनस करेंगे. सो माइनस साइन कम्स आउट हियर. 24 minus 16 gives me 8. 4 minus 4 is 0 plus 6 minus 2 is 4d. So I come out with 4d is equals to 8. D is equals to 8 upon 4 and so D is equals to 2, which is D is equals to $2. मतलब एक ड्रिंक की अमाउंट कितनी है? It is $2. Our correct answer is going to be $2. Let's come back to another question. Here comes the next question. A computer software package is sold to a small business client. The total cost of the software package is $500. So let's break down the sentences again as we have done earlier. Questions को पढ़कर समझना बहुत important. So a computer software package is sold to a small business client. So किसी small business को ये sell किया गया. The total cost of the software package. So basically the total cost of the software package is $500. $500 जो है ना वो सॉफ्टवेयर पैकेज की जो है कॉस्ट है. फॉर द फर्स्ट 10 कंप्यूटर्स के लिए मतलब कह लें कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज इज $500 for the first 10 computers on which the software is installed. 10 computers के
अंदर सॉफ्टवेयर पैकेज अगर डलवाना है यू हैव टू पे $500. Now plus $20 for installation on each additional computer. $20 आप लोग को कब पे करने हैं? अगर 10 कंप्यूटर्स हैं तो हर एक एक कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए you will have to pay $20. So let's write down $500 is the cost of software on all 10 computers. इसके अलावा हमें मज़ीद $20 पे करने होंगे हर कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने की। तो अगर हम बात करें अगर मुझे एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल करवाना है आई हैव टू पे 20, 2 पे इंस्टॉल करवाना है आई हैव टू पे 40 बिकॉज 20 + 20 इज 40, 3 पे करवाना है सो आई विल हैव टू पे 60। अगर मुझे 10 पे करवाना है 10 कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करवाना है so we know that 20 multiplied by 10 which is going to be 200, so $200. So 500 plus $200 is how much? It is actually 700. Now they're asking us which statement best describes the function that models the relationship between the number of computers on which the software is installed and the cost of the software. कह रहे हैं कि वो कौन सा फंक्शन है जो कि प्रॉपर बता रहा है कि इस फंक्शन के बारे में कि उसकी कॉस्ट क्या है और कॉस्ट में सॉफ्टवेयर की कॉस्ट में और इंस्टॉलेशन कॉस्ट में क्या कनेक्शन। तो अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस इट इज़ अ कांस्टेंट लीनियर फंक्शन फॉर 10 or fewer computers and an exponential function for more than 10 computers. तो अगर हम देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बेसिकली क्या होता है एक्सपोनेंशियल टू द पावर 10, 10 to the power another power। तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। एक्सपोनेंशियल बेसिकली क्या होता है जैसे वैल्यू बढ़ती है जैसे वैल्यू बढ़ेगी क्वांटिटी बढ़ेगी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। ये एक्सपोनेंट नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं, ये इंक्रीजिंग ऐसा नहीं है कि वैल्यू क्या कहते हैं बार बार इंक्रीज हो रही है। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगेन ये नहीं है। कांस्टेंट लीनियर फंक्शन, ये फंक्शन जो है बिल्कुल सेम है। अच्छा ये कांस्टेंट लीनियर मतलब क्या है इस बात का? मतलब हमारे रेट बना दिए, इस रेट के मुताबिक ही वो लोग कॉस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हर कंप्यूटर के लिए इंक्रीज करे कि एक कंप्यूटर के लिए इतना, 2 कंप्यूटर के लिए इतना, नो, उनकी अमाउंट फिक्स्ड है। अगर हम आए तो द लास्ट पार्ट इट इज कांस्टेंट लीनियर फंक्शन for 10 or fewer computers and an increasing linear function for more than 10 computers। तो ये बात हमारे लिए मैच करिए कि अगर 10 computers हैं, यहाँ पे क्लियरली क्या है फॉर द फर्स्ट 10 computers, सिर्फ 10 computers के लिए यही रेट है। और अगर मजीद 10 और इससे ज़्यादा कंप्यूटर हो जाएंगे तो हमारी वैल्यूज जो है इंक्रीज करेंगी। सो हमारा बेस्ट आंसर है पार्ट सी। पार्ट अगर आप डी भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्योंकि ये कांस्टेंट, पहली बात कि ये लीनियर फंक्शन जो है इंक्रीज नहीं कर रहा है, 10 कंप्यूटर्स के लिए वैल्यू फिक्स्ड है, इंक्रीजिंग कहीं भी नहीं हो रही। सो माय बेस्ट आंसर इज पार्ट सी। So now in question number 12, the first term in the sequence is 24. Each term in the sequence after the first term is equal to half the previous term plus 4. So as I said further statements पढ़ें और खुद को translate करें। First term in the sequence is 24. It means that the first number in the sequence is going to be 24. Then each term in the sequence after the first term, कह रहे कि जो भी नंबर आएगा पहले नंबर के बाद इस सीक्वेंस में जो भी नेक्स्ट नंबर आने वाले क्या होगा इज इक्वल टू हाफ द प्रीवियस टर्म, पहले वाले टर्म का हाफ करें तो इसमें +4 करें। Which of the following statement best describes the terms in the sequence as it progresses? कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट बता रहा है कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो या हमारा सीक्वेंस किस तरफ जा रहा है? हमें काम करते पहले सीक्वेंस बना के देखते हैं। फर्स्ट नंबर इज 24, 24 डिवाइड बाई 2 इज एक्चुअली, what is 24 divided by 2? 24 divided by 2 is 12। 12 है और 12 से +4 करें, योर आंसर विल बी 16। सो बेसिकली पहला नंबर आपके पास 24,
24 के बाद 16. Next again 16 का half करें, it will be equal to 8. 8 plus 4, your answer is going to be 12. So again 12. Next, so 12 is the next number. इसके बाद 12 का भी half करें, your answer is going to be 6. 6 plus 4 is equals to 10. So your next number is 10. After 10, 10 upon 2 again half करें, your answer is going to be 5. 5 plus 4 is equals to 9. So first your numbers were, मैं ऊपर से erase करूँगी, लेकिन आप लोग अपने पास सारी working जो है मेंटेन रखेंगे. So 24, 16, 12, 10, 9 और 9 के बाद मैं टॉप वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ ताकि मैं आपको नेक्स्ट वर्किंग्स दिखा सकूँ. अगेन मुझे 9 का हाफ करना है. 9 अपॉन 2 आई एम गेटिंग 4.5. 4.5 प्लस 4 आई एम गेटिंग 8.5. अगेन इफ आई डिवाइड इट मोर, 8.5 को डिवाइड बाई 2 करते हैं. सो 8.5 डिवाइड बाई 2 आई एम गेटिंग 4.5. 4.5 plus 4. What is going to be the answer? So 4.25, sorry, 4.25 plus 4 is equals to 8.25. इसको अगर हम मज़ीद डिवाइड करें, so 8.25 divided by 2, so 8.25 divided by 2, I'm going to get 4.125 plus 4 करें, it will be 8.125. तो अगर हम देखें हमारी वैल्यू डिक्रीज होते होते 9 से पहले क्या हो गई, 8.5 हो गई. 8.5 होने के बाद 8.25, 8.25 होने के बाद 8.125. So you can see as the value is decreasing, it is approaching to 8. It is getting closer to 8. So what is going to be the correct answer? Let's read our options. The term gets closer to 8. This is actually the answer which is matching to our working. Closer to 12? No. Terms increase at a constant rate. क्या मेरी terms की value increase कर रही है? Look, 24 से 16 हो गई, 16 से 12. ये increase तो नहीं हो रहा. Decreasing at constant rate, बहुत ज़्यादा decrease, constantly decrease हो रही है. क्या कोई proper नज़र आ रहा है कि कितना decrease हो रहा है इसमें? 24 और 16 में कितना difference है? Difference of 8. 16 और 12 में कितना difference है? 4. तो कोई constant decrease नहीं है. ऐसा नहीं हो रहा है कि decreasing by 4 times. No. -4 हर जगह हो रहा है, नहीं. Decreasing अलग ही तरीके से हो रहा है. So our best answer is option A. Now, question number 13. If you look here, a green car and a silver car are each in the shape of a right circular cylinder. एक circular cylinder की shape में दो cans हैं. Green can है और एक silver can. The cans have the same radius. दोनों cans का same radius है. But the height of green can is 3 times the height of silver can. Let's suppose कि हमारे पास मैं cans draw करके दिखा रही हूँ आपको. कह रहे हैं कि जो green वाला can है ना, वो silver वाले can से थोड़ा सा बड़ा है. Radius दोनों का same है. जो green can का है वही silver can को मैं yellow में draw करके दिखा रही हूँ. लेकिन क्या हो रहा है कि green can का जो volume है ना, it is 3 times. यानी अगर मैं कहूँ green can की जो क्या कहते हैं height है ना, it is 3 times of that the silver. अगर मैं फर्स्ट करते हैं कि दोनों cans का volume सेम, तो हम क्या कहते हैं कि दोनों का volume सेम है, दोनों cans का के अंदर space भी सेम. अब मैंने कहा कि नहीं, सिल्वर तो वही है क्योंकि उसका रेडियस है वही है, लेकिन ना अब मैंने ना ग्रीन कैन का साइज बड़ा कर दिया, सिल्वर कैन का 3 टाइम्स कर दिया. तो अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरे पास वो वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा. सिल्वर कैन किसका वॉल्यूम बढ़ेगा?
वॉल्यूम बढ़ेगा ग्रीन कैन का। तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, हम सिंप्लीफाई करें, रेशियोज निकालें दोनों कैंस के दरमियान। लेट्स सपोज इसको हम दोबारा से देखते हैं एक डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। मैंने आपसे कहा मेरे पास दो कैंस हैं, एक मेरे पास ग्रीन कैन है और एक मेरे पास सिल्वर कैन है। दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है। मैंने कहा कि दोनों का वॉल्यूम है 200। जब हम लोग रेशियोज निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं, और जब भी हम कंपेयर करते हैं उससे हम रेशियोज कहते हैं। और जब हम भी रेशियोज निकालते हैं हम उसके दरमियान इस टू का साइन लगाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। जब मैं दोनों रेशियोज को कंपेयर करूंगी तो क्या होगा, होगा कुछ ये कि मैं डिवाइड बाय 200 इस साइड पर भी, डिवाइड बाय 200 इस साइड पर भी, क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं। सो 200 1 जार और 1, तो हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है 1:1, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम्स सेम है। लेकिन अब मैंने आपसे कहा कि नहीं, मैंने अपने ग्रीन कैन को बड़ा कर दिया। कितना बड़ा किया है, उसके पहले वॉल्यूम के 3 गुना बड़ा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी अकल यही कहती है कि उसका रेशियो भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। सही। सो अकॉर्डिंग टू व्हाट आवर लॉजिक सेज, आवर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। Coming towards the next question. Another question, question number 14, and I'm going to end up the class after this. Which of the following represents the combined design when figure ABC is rotated 180 degree? कह रहे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा फिगर बता रहा है कि जब हम इस ABC ट्रायंगल को टर्न करेंगे 180 तो कौन सी शेप है जो हमें बता रही है कि कैसे नजर आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास लेट्स सपोज ये एक रेक्टेंगल जो खड़ा है, अगर मुझे इसको टर्न करना है 90 डिग्री तो हम इसको राइट एंगल पे टर्न करेंगे, यानी इसको इतना ऐसे कर देंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट शेप देखने में आएगी वो कैसी होगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं आपसे कहूँ नहीं मुझे इसको मजीद टर्न करना है 90 डिग्री, सो कैसे नजर आएगी, इसको मैं मजीद टर्न करूंगी डाउन राइट एंगल पे, फिर ये कुछ ऐसे देखने में नजर आएगी। इसको मैंने कितना टर्न कर लिया, 90 प्लस 90 इज हाउ मच, 90 प्लस 90 इज बेसिकली 180। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं इसको मुझे मजीद टर्न करना है, ऊपर की तरफ टर्न करना है, तो कैसे नजर आएगा, अगेन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। और उसको अगर मजीद टर्न करें इट विल बी कमिंग बैक ओवर हियर। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरीके से हम टर्निंग करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, मैं अगर आपसे कहूँ मुझे शेप को टर्न करना है 180, तो पहले हम इसको ब्रेक करेंगे 2 हिस्सों में। मैंने 180 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। पहले इसको मैंने 90 डिग्री पे ब्रेक किया तो क्या होगा, अज्यूम करें कि मुझे इसको ब्रेक करना है इनटू 90 डिग्री, तो मेरे पास जो शेप देखने में आएगी वो कुछ ऐसे नजर आएगी। लेट मी ट्राई ड्रॉइंग इट। कुछ ये देखने में नजर आएगी, बी अब यहाँ आ जाएगा। अगर मैं आपको नहीं मुझे इसको मजीद टर्न करना, पहले हमने इसको 90 डिग्री पे टर्न कर लिया, अब मुझे इसको एक्चुअली टारगेट क्या है, मेरा टारगेट इज 180। 180 को पहुंचाने के लिए मैंने इसको ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, 90 डिग्री 90 डिग्री, एक 90 डिग्री हो गया। अब मुझे इसको दोबारा टर्न करना है 90 डिग्री में। सो नाउ मेरा डायग्राम कुछ ये देखने में नजर आएगा। सो व्हिच डायग्राम इज मैचिंग द बेस्ट हियर। तो अगर आप देखें ये मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, कैसे यहाँ पे पहुंच सकता है एकदम, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये कुछ और है, इट इज नॉट रोटेशन, रोटेशनल सिमेट्री कह रहे हैं, और ये बिल्कुल हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। सो पार्ट डी इज ऑल्सो is the correct answer. So now what you're doing is you're going to try question number 15, 16, 17 and 18. So please try doing all of these questions. This will help you strengthen up your skills.
हर क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा सकती. It's not possible for me to explain each and every question. But what I will be doing is I'm going to select some important questions of different topics and I will try to deliver it to you. That's it with the class. Take care. Allah Hafiz.